Now we are heading to our next segment called Speak Up Q&A. That's the segment about you. I'll share the link because that link is where how you can come and be part of the show, because now I want to know what is your opinion on what I said. What do you feel? क्या रीजन है कि ये बॉलीवुड नहीं खड़ी हो पा रही है? अगर कोई एक रीजन है कि लगातार फिल्में रिजेक्ट हो रही हैं, फिल्म फ्लॉप हो रही है, तो उसका रीजन, उसका कारण आपके मुताबिक क्या है? मेरे कारण क्या था मैंने बता दिया, आपको क्या लगता है? चाहे वो 83 हो, चाहे वो लिस्ट पूरी फहरिस्त हो जिसका मैंने जिक्र किया, एक के बाद एक लगातार फिल्में फ्लॉप के बाद फ्लॉप हो रही हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही हैं, दूसरे फिल्में आती हैं और कमा के चली जा रही हैं। आपको क्या लगता है? क्या केवल सुशांत फैक्टर है या और भी कुछ है? क्योंकि सुशांत फैक्टर तो मुझे मालूम है, इसके अलावा आपको क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू कनेक्ट, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक। प्लीज टेक दैट लिंक, यूज दैट लिंक टू कनेक्ट and come and speak up. I am waiting for you to listen to your views. This is all about Sushant Singh Rajput and you, the Sushant fans, because today's show is all dedicated to you for what you have been doing for last almost 19 months, just about a week, just about 14 days before Sushant's birthday. That's on 21st of January, and just about a week before 19 months of his death. A death which is mysterious, a death that we all don't know what happened, how it happened, and what is CBI doing. So we still want to know क्या हुआ था सुशांत के साथ 14 जून 2020 को। 19 महीने हो जाएंगे 14 तारीख को, और 21 तारीख को सुशांत का बर्थडे है। ये महीना आप लोग सुशांत के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। So I want to know, how do you feel about the entire story that I brought for you, because this is a show completely dedicated to you. What do you feel? What do you think? Please do come and speak up. I've shared the link. Connect. Use the link to connect. Please do share the video also so that others can get to know and they can also come and join in. Today's show is about the comparison between Sushant Singh Rajput and Ranveer Singh. Is there a comparison? Because a lot of people said that 83 would be a bigger hit than Sushant Singh Rajput's Dhoni, but that did not happen. ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल फर्क था। सुशांत सिंह राजपूत ने ABCD से लेकर Z तक का रिसर्च किया, लेकिन रणवीर सिंह उस रिसर्च करने में चूक, उनसे गलती हो गई। नतीजा ये हुआ, ये फिल्म उस लेवल तक नहीं पहुंची जिस लेवल तक सुशांत ने धोनी को पहुंचा दिया था। मैनी हैज जॉइंड। लेट्स स्टार्ट विद मैनी। One second. Just give me a second, man. Yes, please. Good evening. Please go ahead. Yes, sir. So, sir, you had rightly said about the efforts that were put by Sushant for MS Dhoni. It was not even just months; it was actually a year and a half. That's the amount of effort he had put for MS Dhoni. And if you all, I mean, I think it'll be great if everybody goes and watches his MS Dhoni interviews. Which he gave when he was promoting the movie. And somebody had asked him this question that, how difficult it was or how was your preparation regarding MS Dhoni. So उस time सुशांत ने बोला था कि on the first day of my shooting, when it actually began, I was not preparing for MS Dhoni, I was MS Dhoni. So that is the kind of effort he had put in for his preparation for MS Dhoni is concerned. And that is why, most of the people were shocked. And I'm talking about the Bollywood actors. There was this round table conference which was done by Rajiv Masand, who we famously know used to write a lot of blind articles on Sushant. And then on that round table, I think it was a 2017 round table interview, I think, which everybody should go and watch. The actors involved in that round table conference were, Amitabh Bachchan, Sushant Singh Rajput, Ranveer Kapoor, and
2-3 और एक्टर्स थे जो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे. And it, of course, they were chosen according to, they were actors of the year, the ones whose movies had done very well. I think Ranbir was probably called for Sanju or maybe for some other movie, I don't remember. And Shahid Kapoor was also there in that round table conference. So I would request everybody to go and watch this interview in which Amitabh Bachchan is actually complimenting Sushant Singh Rajput, and he said that, that shot that you have played in the movie, how did you manage to do that? And he said, you just, it was ditto, the expressions were identical to MS Dhoni, which is very difficult for an actor to achieve. So, sir, the effort, and his friend Vishad Dubey on Instagram has actually written about how Sushant had actually practiced during MS Dhoni time, that once he was practicing and he was being, his coach for the movie was Kiran More. Kiran More, yeah, Kiran More coached him. Yes. I don't know much about cricket, but and Sachin Tendulkar was actually watching him train Sushant Singh Rajput, and he called Kiran More on one side and he told Sachin Tendulkar asked Kiran More, which team is he playing for? Mm-hmm. Imagine, this is the amount of effort Sushant used to put for a movie. And Kiran More said, no, he's not in any team. He is preparing for the MS Dhoni. He's an actor. Yes. उन्होंने पूछा था ये कौन सा क्रिकेटर है जो खेल रहा है, किस टीम से खेलता है. yes. उन्होंने बोला कि ये क्रिकेटर नहीं है, ये एक्टर है, जो धोनी फिल्म के लिए प्रैक्टिस कर रहा है. Yes. And I also believe that Sushant had actually had hairline fracture on his ribs while he was, practicing for that helicopter shot जो बहुत famous है MS Dhoni. I think he's known for that shot. Correct. So he had even had a lot of physical injuries while he was preparing for this movie. Which kind of actor does that kind of effort? And it showed, it paid off. The way MS Dhoni, मैंने इन लोगों का कहना है कि फिल्म के टिकट्स बहुत महंगे थे, कोविड था, इसलिए नहीं चली फिल्म, शायद फिल्म में म्यूजिक ठीक नहीं था, म्यूजिक अच्छा नहीं था, म्यूजिक नहीं था इसलिए फिल्म नहीं चली. अब शायद लोगों को, आज के जनरेशन को 83 में इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए नहीं चली. लोग कपिल देव को नहीं जानते हैं इसलिए नहीं चली. क्या ये सही है? नो सर, इट डजंट रियली मैटर. तो कितने लोग मिल्खा सिंह को जानते थे? कितने लोग, if you want to talk like that, how many young people knew about Milkha Singh? और वो चकदे के कोच को कोई भी नहीं जानता. Absolutely. Not only that, sir, there was another movie, एक और मूवी थी, कौन सी मूवी थी, I don't remember. उसमें भी there was this, हाँ, जिसमें वो तापसी पन्नू है, वो पंजाबी हॉकी प्लेयर था ना, उसके ऊपर मूवी बनी थी. सरनदीप सिंह. Yes. नहीं, वो not सरनदीप सिंह, संदीप सिंह. या उसके ऊपर भी मूवी बनी थी, वो भी मूवी बहुत चली थी. It has nothing to do, it's the story, the acting, and most importantly, we have been saying this since the last one and a half year, it's Sushant Singh Rajput's justice that is happening. ये सूर्यवंशी वगैरह बोलते ना, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है. खुद ही पैसे उन्होंने बॉक्स ऑफिस वालों को दे दिया होगा कि भैया उनको बोल दो हमने एटलीस्ट मनी तो वापस ले लिया है. नहीं तो सूर्यवंशी OTT प्लेटफॉर्म में विद इन 15 डेज क्यों आती वो? चली नहीं वो बिल्कुल. मैंने कहा ना, वो बमुश्किल शायद कॉस्ट रिकवर किया हो. सर कॉस्ट भी रिकवर किया, शायद अक्षय कुमार ने खुद पैसे डाल दिए होंगे, सिनेमा हॉल में बांट दिए होंगे, क्योंकि वही तो प्रोड्यूस करता है ये सारी मूवीज अपनी. नहीं तो इतनी जल्दी उनको OTT प्लेटफॉर्म में लाने की क्या जरूरत थी? I agree. They would have given it some chance, na, for it to get some more money. These are all theories that these people are putting. किसी कोई मूवी नहीं चल रही है, हम तो चीख के बोल रहे हैं ना, कोई नहीं चलेगा. हम हमारे से आर्ग्यूमेंट करते थे कि कहाँ है आपका वो बॉलीवुड बाइकॉट और ये सब. अब आप देख लो, क्रिकेट इज द मोस्ट लव्ड गेम इन इंडिया. पीपल आर क्रेजी, मोस्टली मेन. तो उनको क्या हो गया? मैंने तो आज आपको बताया कि ये प्रूव करता है कि भाई SSR फैंस का दम है, और दम दिखा दिया है SSR फैंस ने. यस सर. इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये फिल्म अगर फ्लॉप हुई है तो उसका कोई रीजन नहीं है. इस तरह की पब्लिसिटी, इस तरह के रिव्यूज, इस तरह की रेटिंग मिलने के बाद अगर फिल्म क्रैश कर जाए तो और कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि बाकी फिल्में चल रही है, ये फिल्म क्यों नहीं चलेगी?
ये इसलिए नहीं चली कि आप लोग चलने नहीं दे रहे हो, as simple as. Yes, and sir, another thing is they did a lot of promotion, getting the old team to promote the movie. That's what I said. कपिल शर्मा के शो में और पता नहीं और इंटरव्यूज में सब ओल्ड टीम को लेके आए हैं, तो क्यों नहीं लोग Exactly what I said. आपने शायद नरेशन नहीं सुना मैंने वही बोला. Yes sir. So sir, मेरे हिसाब से तो it is all Sushant Singh Rajput's the justice that is happening on its own. Okay. And the stories will continue. एक स्टोरी खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी. अभी 83 की स्टोरी आई है, नेक्स्ट देखना आपको क्या हमको शॉक मिलने वाला है. इतना आसान नहीं होने वाला है मैनी. उसका रीजन ये है कि कोई भी प्रोड्यूसर अब फिल्म को रिलीज करने से डरेगा, क्योंकि अगर 83 को इस तरह से फ्लॉप करा दिया गया है तो आगे कौन सी फिल्म आएगी और कितनी भगवान जाने. जर्सी जो शाहिद कपूर की है, which is also about cricket, that was also going to get released on 31st December, तो उन्होंने रिलीज नहीं करी ना. इसका रिजल्ट देख के 2-3 मूवीज जो पिछली रिलीज हुई हैं उनका रिजल्ट देख के उन्होंने फिर OTT पे रिलीज करी ना. इवन अतरंगी रे they released it on OTT because अक्षय कुमार की सूर्यवंशी नहीं चली थी. That is the reason. कोई भी, और इस फिल्म के बाद जितनी भी बड़ी बजट फिल्म है उनको रिलीज करने में प्रोड्यूसर कतराएंगे, डर लगेगा. Yes. क्योंकि इस तरह की पब्लिसिटी, इस तरह के व्यूज मिलने के बाद अगर फिल्म क्रैश हो गई इस तरह से कि ये 2 हफ्ते में 93.5 करोड़ कलेक्शन होता है. सर वो भी नहीं होगा, अब देखना वो भी नहीं होगा. नहीं, अगर वो नहीं मान, व्हाई डाउट, लेट्स एडमिट इट. नो, आई एम सेइंग आई एम रेडी टू एडमिट व्हाटएवर यू गिव ऑफिशियल. ओके, वही वो भी तो नहीं रिकवर कर रहा है ना. yes. आपके मुताबिक ऑफिशियली 124 करोड़ में बनी और yes. कलेक्शन 93 करोड़ है, तो फिल्म तो बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई. और एक्सपेक्टेशन था कि 300-500 करोड़ कलेक्ट करेगी. एब्सोल्युटली बचता ही नहीं कुछ. यस सर. और सर ये इन्होंने बजट कितना डाला है, 125 करोड़ की तो मूवी बनी है. इतने पैसे लगाए हैं इसके ऊपर. उसके अलावा पब्लिसिटी का खर्चा अलग है, मीडिया पब्लिसिटी का खर्चा अलग है, वो अलग है, अलग है, एडवर्टीजमेंट अलग है, वो सब और वो दुबई में जाके बुर्ज खलीफा में इतना पब्लिसिटी किया उन्होंने, सब पैसा लगा होगा, वो अलग है. और उसके बाद जो रॉयल्टी पे की, हाँ जी, क्रिकेटर्स को रॉयल्टी पे किया होगा. yes. It's a big loss for the director. I had initially heard that it was for 250 crores. मैंने इनिशियली सुना था, क्योंकि आपने रॉयल्टी बहुत पे किया होगा. हाँ, मैंने तो ये सुना था कि 250 करोड़ में मूवी बनी है. 124 तो करोड़ तो मूवी बनाने में अगर लगा दिया आपने, तो आपने उसके अलावा रॉयल्टी पे किया होगा, आपने एडवर्टीजमेंट में इतना खर्च किया, आपने इसके प्रमोशन पे उतना खर्च किया, वो पैसे कहाँ जाएंगे? तो सर सिंपल सी बात है, सुशांत सिंह राजपूत ने ड्यूरिंग राब्ता इंटरव्यूज अगर आप देखोगे भी ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि सुशांत सिंह इज लिटिल, मतलब कि वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है उन इंटरव्यूज में. आप देखना वो थोड़ा इमोशनल है. एंड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज उन्होंने पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेपोटिज्म. आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. एंड ही सेड देयर इज नो हार्म इन नेपोटिज्म एग्जिस्ट्स एवरीवेयर. There is no harm in star kids getting opportunity to work, as long as they don't stop the talent also, new talent to also come in the industry. And he said if you don't do that, सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप करना चाहते हो करो, दूसरों को रोको मत. yes आपको पढ़ना है आप बढ़ो, लेकिन दूसरों के कॉस्ट पे मत बढ़ो. yes. and तब सुशांत ने बोला था अगर जो बॉलीवुड को सरवाइव करना है तो वो मेडियोक्रिसिटी पे नहीं सरवाइव कर पाएगी. उसके लिए अगर आप नई चांस दोगे, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको, फिर द इंडस्ट्री विल कोलैप्स. तो ये सुशांत सिंह राजपूत की प्रोफेसी है जो अप टू आ रही है. द बॉलीवुड इंडस्ट्री इज कोलैप्सिंग एंड दे हैव टू रियलाइज दैट. They have to realize, they have to give recognition to सुशांत सिंह राजपूत. हमारी डिमांड्स हैं, हमको एक पूरा प्लानिटोरियम बना के दो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे, आप एक पूरी फिल्म सिटी बनाओ सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे, फिर हम जाके सोचेंगे आपकी मूवी बनाने देखनी है. स्लाइड जो है ये रुक नहीं रहा है. ये तो मैं वही कह रही हूँ कि उनको आप, वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलती. वो तो अभी भी नहीं मान रहे हैं. किसी भी एक भी रिव्यू में एक भी क्रिटिक ने कहीं पर भी इस बॉयकॉट का मेंशन भी नहीं किया. मैंने पढ़ के सुना दिया सर, क्योंकि क्रिटिक्स ये सब खरीदे हुए हैं ना. ब्लाइंड आर्टिकल्स कौन लिखता था? यही तो लोग लिखते थे. जैसे ही फिल्म क्रैश हुई सबने गिनाना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 रीजन, इसलिए हो गई उसलिए हो गई. अरे भाई पहले भी तो फिल्म देखा था आपने, तब आपको समझ में नहीं आई कि इसमें म्यूजिक नहीं है. तो सर अभी उनको डिनायल में होने दो ना. अगर आप डिनायल, आर इग्नोरेंस cannot stop what is inevitable. मैं तो सारे सुशांत सिंह राजपूत के कोट कर सकती हूँ. अगर आप एक चीज को इग्नोर करते रहोगे और प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो फिर ये मत सोचिए कि आप जिंदा रहोगे.
फिर आपको उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। वर्ड में कहते हैं आंख बंद करने से परेशानी खत्म नहीं हो जाती है। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपके आंख बंद करने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और या वो प्रोग्राम आंख खोल के आप प्रॉब्लम को डील कर सकते हो, आंख बंद करके नहीं। यस सर, जैसे वो कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो आंख बंद कर लेता है ना, सोचता है बिल्ली चली जाएगी, पर बिल्ली तो उसको खा जाती है। शुतुरमुर्ग जो है वो सिर घुसा लेता है, उससे समझता है कि खतरा टल गया। खतरा आंख बंद करने से नहीं टलता है। बिल्कुल। सुशांत सिंह राजपूत comes from Bihar. Actually, the problem is this. Why a lot of things that I say is what he also says is because ऐसे ही हैं हम लोग यार, हम लोग यही सुनते हुए आए हैं, यही सुनते हुए आए, यही बोलते रहे। तो जो हम बोलते हैं, जो सुनते हैं, वही तो आगे बोलेंगे। अरे भाई बाकी ने भी सुना है, इनको भी मालूम है। ये सिर्फ एडमिट नहीं करना चाहते हैं। yes, जो एडमिट करने से बेइज्जती हो जाएगी। yes. ईगो बैटल है जो लड़ रहे हैं आपसे। कोई बात नहीं, आप ईगो करते रहो, फिर एक दिन आपको पैसा इज अल्टीमेटली एवरीथिंग फॉर यू ना। तो जब आपको ह्यूज लॉसेस होने शुरू होंगे, अपना लोग बदलेंगे। मैं तो शुरू से बोल रही हूँ, मुझे डर ये लग रहा है कि ये तो हम तो डूबेंगे सनम, ये साउथ इंडियन सिनेमा को भी ले डूबे। सर वो अभी साउथ इंडियन की मर्जी है, वो अभी मौका उठा रहे हैं इस चीज का, तो अगर फायदा उठाएंगे और आप भी सुशांत सिंह राजपूत के उसके नहीं कर रहे हो, आप एडवांटेज ले रहे हो। अभी इन्होंने मिक्स करना शुरू कर दिया ना। मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाँ नहीं, अभी तो इन्होंने हिंदी फिल्म को तो पब्लिक रिजेक्ट कर ही रही है। अब अगर RRR जैसी फिल्म आएगी, उसमें भी कौन जाएंगे, आलिया भट्ट और ये सबको ले लेंगे, ये सोच के कि फिल्म और बड़ी भी हो रही है, नुकसान ना हो जाए इन लोगों का। सर मैं आपको, आप नया ट्रेंड देख रहे हो क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ नया ट्रेंड क्या है। इफ यू ऑब्जर्व, वो क्या ले रहे हैं, नॉर्थ इंडियन एक्ट्रेस को ले रहे हैं और साउथ इंडियन हीरो को ले रहे हैं। आप लेगार देख लीजिए, वो क्या देविकोंडा और अनन्या पांडे, सारा अली खान के साथ धनुष, फिर और कौन आ रहा है, ये RRR जो बोल रहे हो आप, मुझे नहीं पता वो जो भी है, वो आलिया भट्ट और साउथ। ये अब देखो ट्रेंड क्या है इनका, दे वांट टू मेक इट इनटू बायलिंगुअल मूवीज नाउ। ये बहुत चालाक है, बायलिंगुअल मूवीज बना रहे हैं। आप सबको प्रभु क्या हुआ जो आपका फेवरेट है, प्रभास, तो यानी ये माना जाए कि एक्ट्रेसेस का है, ये एक्टर्स को प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे लगता है बॉलीवुड से जुड़े सभी लोगों को लेकर सेम ओपिनियन है, चाहे वो एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो। यस मधु, प्लीज गो अहेड। यस मैन, जस्ट स्टे ऑन। यस Payal is also connected and so is Ayush, so I'll connect one by one. Yes Madhu, please go ahead. सर देखिए, बॉलीवुड जो है ना वो भी मैसिव चेंज से गुजर रहा है ना। और मेरे को तो ये सोच के हैरानी होती है कि इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के बाद भी ये सरवाइव किए हुए हैं। तो इसका रीजन है सर, देखिए जिस तरह से लोगों ने सोचा था रेडियो चला जाएगा, न्यूज़पेपर चला जाएगा, थिएटर चला जाएगा, बॉलीवुड एकदम से खत्म नहीं होगा, लेकिन ये भी अपने जो ये जिस तरीके से जितना हाइक इनको दिया गया है ना, जैसे जो इनके एक्टर एक्ट्रेस हैं, इनको जो भगवान की तरफ पूजा जा रहा है सर, अब वो चीज खत्म हो जाएगी, वो परमानेंट खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता अब ये कम बैक कर पाएंगे कभी भी। जिस तरह से लोग जैसे एंटरटेनमेंट के बहुत सारे तरीके हैं ना सर, मतलब सोशल मीडिया है, बहुत सारे तरीकों में से ये भी एक तरीका बन जाएगा। क्योंकि जितना मतलब बॉलीवुड को जो एक अलग फ्रेम में रखा गया था ना, जो इनको भगवान से भी ऊपर बना के रखा था, अब वो तो कभी नहीं हो पाएगा। जैसे अभी भी कुछ लोग रेडियो देखते हैं, कुछ लोग बुक्स कभी भी नहीं खत्म हुई, न्यूज़पेपर कभी नहीं गया, उन्हीं में से एक का ही एंटरटेनमेंट में से एंटरटेनमेंट रह जाएगा सर, मेरे हिसाब से तो ये चीज है। और सर अगर मूवी देखने जाना होता 83, अगर मैं सोचती कि मुझे जाना है मूवी देखने और मैं 83 देखने जाना होता, तो मैं किस रीजन से नहीं जाती, वो रीजन होता उसका पोस्टर। क्योंकि रणवीर सिंह का जिस तरीके से कपिल देव जैसे लीजेंडरी का को एक्टिंग ना करके ऐसा लग रहा है जैसे मिमिक्री करने जा रहे हैं। मतलब मुझे इस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं पता, एक्टिंग क्या नहीं मालूम, सिर्फ मैं पोस्टर देख के बता रही हूँ कि जिस तरह से या प्रोमोज जो हुए थे, तो जिस तरीके से कपिल देव को कॉपी करने के लिए इन्होंने उसको रेडी किया ना, मतलब जो लुक तैयार किया है, तो ऐसा लग रहा है कि वो उसकी एक्टिंग नहीं, उसकी मिमिक्री करने वाला है। मतलब उसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आया कि मतलब आप ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को का भी लुक दिया गया था सुशांत को, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उसको जोक करने की कोशिश की जा रही है। आप पूरा लुक देखिए, इतना बिगाड़ने की क्या जरूरत है? कपिल देव की हाइट और पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त है सर, सिर्फ घुंघराले बाल कर लेने से और थोड़ा फेशियल को बिगाड़ने से कपिल देव आप नहीं दिखोगे, नहीं बनोगे। और जैसा कि आपने बोला ना सर कि सुशांत ने जो मेहनत करी थी क्रिकेट के स्किल्स को सीखने के लिए, वो डेफिनेटली आपसे नहीं हो पाएगा। वो दिख रहा है प्रोमोज में, जहां तक पोस्टर में आपका लुक दिख रहा है, आपके जो जिस तरह से दिख रहा है, वो कभी नहीं हो पाएगा सर। तो मेरे हिसाब से तो 83
को अगर 80 जैसे जीरो मूवी बनी थी ना, इनका नाम भी जीरो ही होना चाहिए था, 83 नहीं। तो सर मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा रीजन है इसके पीछे एसएसआर तो है ही, थोड़ा बहुत कोविड को ये बोल रहे हैं सर, कोविड का रीजन होता तो सभी स्पाइडरमैन की मूवी आई, स्पाइडरमैन आया, उसके अलावा जितनी भी सर ये रीजनल मूवीज हैं वो डब की हुई मूवी लोग देखने जा रहे हैं, उसको सुपर डुपर हिट बना रहे हैं। लेकिन सर आपको क्यों देखने जाएंगे, आपके पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं होता, ठीक है, आपके पास ओरिजिनल कुछ भी नहीं होता, तो बेटर है ना कि हम जो ओरिजिनल है उसी को डब करके देख लें। आप क्यों इतना खर्चा करके फालतू में उसको हिंदी में रीमेक करते हो अलग अलग चेहरों को ला करके, आप रहने दो, हम डब वाली मूवीज ही देख लेंगे। और या फिर आपके पास इतनी टेक्निक है कि आप आजकल ये दो तरह की फिल्में बना रहे हैं मधु। एक फिल्म बना रहे हैं जो आर्मी या डिफेंस के जो हीरोज हैं उनसे रिलेटेड, जैसे शेरशाह आई थी, और दूसरी है जो स्पोर्ट्स आइकॉन से रिलेटेड, कभी मिल्खा सिंह पे बना देते हैं, कभी साइना नेहवाल पे बना देते हैं, कभी कपिल देव पे बना देते हैं, कभी ये इनका फॉर्मूला हो गया। क्यों यह फॉर्मूला किसने दिया? पहला महेंद्र सिंह धोनी पे फिल्म किसने किया? सुशांत ने। ये फॉर्मूला उनको वहां से मिल गया। दूसरा फिल्म किसने किया? तो वो डिफेंस वाला, वो एपीजे अब्दुल कलाम के बाद से बनना शुरू हो गया। जब से एपीजे अब्दुल कलाम आई उसके बाद से ये फिल्म बननी शुरू हो गई इस तरह की। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इसको लोग ज्यादा एक्सेप्ट कर लेंगे। सर आपने आपने सोचा भी कैसे कि रणवीर सिंह जैसा एक्टर कपिल देव जैसे के ऊपर बायोपिक बना सकते हैं, मतलब आपने सोचा भी कैसे? वो उनके इनका जो है ना वो उछल कूद करने वाला धूम धड़ाका उस टाइप का जो नहीं होता मसाला मूवीज, बस एवं मतलब इसी टाइप की मूवी बनाने लायक की आप इस बेसिकली यू आर सेइंग मधु की सीरियस इमेज नहीं है। बिकॉज सीरियस इमेज नहीं है तो आप इस तरह के कैरेक्टर में घुस नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है वो, आपका जो पूरा परसेप्शन है वो लगता है जैसे मसाला फिल्म के हिसाब से। लेकिन रणवीर के बारे में ये नहीं कह सकते, बिकॉज रणवीर हैज परफॉर्म्ड वेल, बट ही इज परफॉर्म फॉर संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली इज द डायरेक्टर, वो किसी भी एक्टर से काम करवा लेंगे। तो रणवीर सिंह इस गलतफहमी में नहीं रहे कि वो बहुत बड़े एक्टर बन गए। वो बहुत बड़े एक्टर नहीं बने हैं, उनसे संजय लीला भंसाली ने काम करा लिया है। दोनों में फर्क है। आप नेचुरल एक्टर नहीं है, आपसे काम करवा लिया गया है। आपके पास जब कोई दूसरा डायरेक्टर जाता है, आप उसके लिए काम करते हो, तो आप उसकी नैया को डुबो देते हो। आपने पहले भी डुबोया है, अभी भी डुबा दिया। तो ये मिस्टर कबीर खान के नैया को जो आपने डुबाया है वो इसलिए क्योंकि कबीर खान जो है वो संजय लीला भंसाली नहीं है। वो आपसे वो नहीं करवा पाए जो संजय लीला भंसाली कर गए। जबकि सुशांत ने एमएसडी में वो किया जो वो खुद करना चाहता। वो परफॉर्मेंस उसका है, वो मेहनत उसने किया। आप डायरेक्टर के एक्टर हो, डायरेक्टर मेहनत कराएगा तो आप करोगे, डायरेक्टर बोलेगा तो आप करोगे, वरना आप अपने बलबूते फिल्म को चलाने की काबिलियत नहीं रखते। तो देखिए अगर हमें छोटा मोटा एंटरटेनमेंट ही अगर करना है तो हम तो जो चीपर एंटरटेनमेंट के जो तरीके हम वो देखेंगे ना, हम तो सिंपल मोबाइल में देख लेंगे। अगर हम इतनी मेहनत करके थिएटर जाएंगे, वहां हम इतने कॉस्टली टिकट्स लेंगे, फिर पार्किंग का झंझट संभालेंगे, उसके बाद जो है ना ये भी गारंटी नहीं है कि वो मूवी अच्छी होने वाली भी है कि नहीं होने वाली। अगर इतनी मेहनत और इतना खर्चा करके वहां तक अगर पहुंचेंगे ना, तो उसके लिए आपको सुपर डुपर क्या बोलेंगे, आपको आपके लेवल को ना बहुत ऊपर लेके जाना होगा। ठीक है, कि आपके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी है, जैसे स्पाइडरमैन बनाने के लिए लोगों के पास है, जितने स्पेशल इफेक्ट स्पाइडरमैन में बनाए गए हैं, कि आपके पास वो है। आपके पास सिर्फ एक चीज है, वो है इंडियन इमोशन को किस तरीके से कैश किया जाए। मतलब मुझे लगता है इन्होंने ये सोचा कि रणवीर सिंह को लेकर आएंगे, फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लोग रणवीर सिंह को देखने पर। ये प्रूव हो गया है कि केवल रणवीर सिंह के नाम के बलबूते फिल्म नहीं चलेगी। फिल्म आपको चलाना है तो बाकी चीज इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आप एक जबरदस्त बॉयकॉट बॉलीवुड कॉल को फेस कर रहे हो, और जब तक आपका परसेप्शन पॉजिटिव नहीं होगा आपकी फिल्में पिटेंगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, और ये बिल्कुल पता नहीं क्यों इन्होंने इनका जो इन्होंने अपने दिमाग में डाल रखा है सर कि कुछ भी नहीं है, मतलब जो भी है थोड़ा बहुत कोविड की वजह से हम वापस से कम बैक कर जाएंगे अपने एटीट्यूड के साथ, अपने ईगो के साथ। वो आज भी अपने आप को सुपरस्टार बैठे हैं। दिल को बहलाने के लिए गालिब या ख्याल अच्छा है ये मानना और बात है। हकीकत ये है कि मैंने सारे रिकॉर्ड सामने लाके रख दिए हैं। अगर इसमें एक भी फैक्टर आपके लिए काम कर रहा होता तो फिल्म हिट हो गई होती। एक भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। क्यों?
क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं, वो बहुत इफेक्टिव कैंपेन है और आपके पास उसका काउंटर नहीं है। इसके कारण आपकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। ये एडमिट कर लीजिए, 14 जून 2020 के बाद जो फिल्म फ्लॉप हो रही है, उसका सारा क्रेडिट और सारा रीजन जो है वो सुशांत के एंगर को जाता है। सुशांत के डेथ के बाद जो एंगर है, गुस्सा है ना, वो अभी तक थमा नहीं है, जिसके कारण जिस गुस्से में बॉलीवुड बही चली जा रही है। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज व्हिच बॉलीवुड विल नेवर एक्सेप्ट। सर देखिए, एंटरटेनमेंट का मॉन्स्टर गोडाउन सबके पास है, अभी सबके पास है। तो एक पहले क्या होता था कि कोई रास्ता नहीं होता था, चलो क्या करें, कुछ तो एंटरटेनमेंट करना, चलो थिएटर चले जाओ। अभी वो वाला नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि भाई अब हम क्या करें इसलिए हमें थिएटर जाना है। आप कुछ इतना बड़ा करोगे इसलिए थिएटर लोग जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। और स्पेशल अभी जब जब तक तो सर देखिए, जब तक ये एसएसआरियंस है ना, तब तक तो ये बड़ी मुसीबत में है, बहुत मुसीबत में। अभी भी इनको, अगर वो जाग सकते हैं तो उनको जागना चाहिए। ना ना ना, ये डिनाइल मोड में है, ये नहीं आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। फैक्ट है कि पब्लिक अगर है तो आप हो, लेकिन आप तो एडमिट ही नहीं कर रहे हो कि पब्लिक है। आप तो कहते हो कि पब्लिक थोड़ी फ्लॉप करा रही है, कोविड फ्लॉप करा रहा है, पैसे का टिकट फ्लॉप करा रहा है, खराब म्यूजिक फ्लॉप करा रहा है। पब्लिक का तो नाम ही नहीं ले रहे हो आप। भाई जिनसे जो टिकट खरीदेगा उसका आप नाम ही नहीं ले रहे हो। टिकट खरीद रहा है वो स्पाइडरमैन का, पुष्पा का, और आपका नहीं खरीद रहा है। और आप बोल रहे हो पब्लिक जो है वो कोई फैक्टर ही नहीं है। उस मूवी है कोविड, कौन सा फैक्टर है? म्यूजिक। अरे भाई, तो अरिजीत सिंह को गाने क्यों नहीं मिल रहे? मैं ही पूछ, चलो म्यूजिक की फैक्टर है ना। आपने अरिजीत सिंह को गाने क्यों नहीं दिए? इसलिए नहीं दिए क्योंकि सलमान खान जी से झगड़ा हो गया, तो जो सलमान से लड़ेगा वो बॉलीवुड में नहीं रहेगा, खत्म। ये 83 हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग को देखना ही नहीं है। और मेरे जान पहचान के ऐसे भी हैं जो ऐसे सारे नहीं है हमारे फैमिली में भी, लेकिन वो लोग पुष्पा और स्पाइडरमैन नहीं, मैं वही हम बोल रहे हैं कि मेरे फैमिली में ऐसे हैं कि मेरी तरह कोई वॉरियर्स या ऐसे नहीं है, लेकिन वो लोग मूवी देखने गए हैं पुष्पा और स्पाइडरमैन, लेकिन 83 नहीं गए हैं। वो मेरे कहने पे नहीं गए, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने आप में ही नहीं गए हैं। तो मतलब इंसान में अपने दिल से ही देखने का चाव ही नहीं है, तो मतलब इंसान देखना ही नहीं चाहते हैं। तो नॉट ओनली द एसेसरियन सर, कोई नहीं देखना चाहते हैं इन लोगों को। तो वो लोग पुष्पा और स्पाइडरमैन क्यों देखेंगे फिर? आयल इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, अंतिम, सड़क, चेहरे, राधे, बेल बॉटम, बंटी बबली, सब बड़ी बैनर की बड़ी फिल्में, सारी पिट गई हैं। और फिर भी इनको नहीं लगता कि पब्लिक आपको नहीं देख रही है, पब्लिक रिजेक्ट कर रही है, पब्लिक आपको गिरा रही है। इनको अभी भी समझ में नहीं आई बात। सर ये लोग बड़े बैनर, बड़े मूवी बने कैसे? ये करण जौहर बने कैसे? आदित्य चोपड़ा बने कैसे? ये लोग अपने पिताजी के जो उस टाइम पे रहे हैं, यश जौहर जी या फिर यश चोपड़ा जी, इन लोगों के ही जनरेशन है ना, तो वो लोग देखे गए हैं उस टाइम के हिट मूवी। उसके बाद से ये लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब पब्लिक उन लोगों के बाद इन लोगों को देखकर इन लोगों को हिट कर रहे हैं, तभी ना ये लोग बैनर बने हैं एक दिन में। और अब अपने आप को हर बात की किंग समझ रहे हैं, हर चीज की बेसाथ बादशाह समझ रहे हैं, किसी को नहीं टिकने देंगे, किसी को नहीं समझने देंगे। और पब्लिक को तो वो लोग क्या सोचते हैं, ये पब्लिक कुछ नहीं जानते हैं। ये लोगों की गलतफहमी है कि क्योंकि एंड ऑफ द टाइम टिकट तो हम ही लोग खरीदेंगे। क्या वो लोग टिकट खरीद के हमें घर पे देखे जाएंगे? तो देखे जाए फिर भी हम लोग नहीं देखेंगे, तब क्या करेंगे? आयल, अगर आपको दोनों में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना हो, सुशांत सिंह राजपूत और रणवीर सिंह में, या जो फिल्म बनी MS धोनी पर और जो बनी 83 पे, आपको क्या डिफरेंस नजर आता है मेरे अलावा? सर मैंने तो पहली बात, मैं 83 नहीं देखी हूँ, मैंने 83 नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखी। मैं तो सिर्फ इस तस्वीर की बात कर, मैं वही तस्वीर से ही मैंने पहले ही कहा ना कि उसने सिर्फ लुक्स को कॉपी किए हैं। जहां पे लुक्स को कॉपी करके ही ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि सच कहूं तो कपिल देव जी की मतलब तौहीन हो रहा है यहाँ पर, कि ऐसा लग रहा है कि उनको किसी और की जगह पर उनके फेस को ही रिप्लेस कर दिया गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। वो तो कपिल देव है ना, उनको तो कोई रिप्लेसमेंट उस तरह से नहीं हो सकता है। अगर रणवीर सिंह अपने हिसाब से अपने लुक्स को कैरी कर वो जैसे बोलते थे, जैसे करते थे, अगर प्रोमो में भी ऐसा कुछ दिखाया जाता तो समझ में आता। हमें सुशांत को फेस में से कहीं पर पता नहीं चलता था
कि धोनी, मतलब हम लोग को लगता था कि धोनी ही है, ये सुशांत ही है, दोनों अलग ही है। लेकिन जैसे ही वो शॉट लेते थे या फिर कोई सीन उस तरह से प्ले करते थे, हमें समझ में आ रहा था कि ये वो कैरेक्टर है, वो जिंदा दिली है उसमें, कि उस टाइम पर, उस वक्त पर उस इंसान को क्या सोच रहे थे उस वक्त उमेश धोनी, वो सुशांत हम लोगों को पोर्ट्रे करके दिखाए हैं। ये फर्क है, हम लोगों को सोच पर वो अटैक किए हैं, लुक्स पर नहीं। तो ये सोच और लुक्स, क्योंकि दिमाग, अगर ब्रेन ही सही तरह से चले ना, तो ब्रेन के हिसाब से तो सब ऑर्गन्स काम करते हैं। अगर ब्रेन से डायरेक्शन गलत देंगे तो आंख देखकर क्या करेगा, आंख को थोड़ी ना अच्छा लगेगा हर चीजें, जब ब्रेन ही बोल रहा है कि ये सही नहीं है। तो तो सबसे बड़ा फर्क तो मुझे यही लगता है। बेसिकली जो आप पिक्चर देखते हो, जो पोस्टर देख रहे हो, आपको नहीं लगता कि पोस्टर को देखकर आप कन्विंस होते हो? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। जब हम नो, पिक्चर देखते हैं या फोटो देखते हैं या पोस्टर देखते हैं, भले ही सुशांत धोनी की तरह ना दिखे, बट आप कन्विंस हो जाते हो। लेकिन इस पोस्टर को देख के आप कन्विंस नहीं हो रहे। बिल्कुल भी नहीं। और आपने जिस तरह से कहा है कि स्टोरी लाइन ही चेंज कर दी है, सचिन तेंदुलकर को भी ला दिए हैं, तो इसका क्या मतलब है? उस टाइम में सचिन कब कहाँ थे 83 में? मुझे तो याद ही नहीं है, मतलब मिस्टर कबीर खान के मुताबिक सचिन तेंदुलकर भी थे, दादा मैं भी खेलूंगा। तो वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, 83 में सचिन तेंदुलकर कहाँ थे? और मतलब कुछ भी बना देते हैं कि ये लोग। कबीर खान को ये बात शायद नहीं मालूम कि कपिल देव को लोग दादा नहीं बोलते थे, कपिल देव को लोग कपिल पाजी बोलते थे। हाँ, लेकिन शायद दादा तो गांगुली को बोलते थे। डायलॉग के में ये कहा कि दादा मैं भी खेलूंगा, शायद। मतलब सर, और इस मूवी बनाने के बाद 500 करोड़ का एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। बाप रे बाप, अगर आप 300 बॉलीवुड तो कुछ अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। आयल, अगर इस फिल्म पर 300 करोड़ खर्च हो रहा है, 125 करोड़ की फिल्म बन गई, उसके बाद आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं टीम के प्लेयर्स को, बीसीसीआई को, उन सब को, उसके बाद क्योंकि बीसीसीआई से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ा ना इस फिल्म के लिए, 83 पे बन रही थी, कपिल देव पे तो बन नहीं रही थी, तो आपको रॉयल्टी पे करना है, उसके बाद आपको पब्लिसिटी में खर्च करना है। इतना खर्च करने में तो 300 करोड़ चले जाएंगे। तो अगर 500 नहीं बनाओगे, तो 500 करोड़ नहीं बनाओगे तो प्रॉफिट कैसे होगा? सर एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहूंगी कि 83 हो चाहे कोई भी मूवी हो, हम लोग नहीं देखेंगे और ना किसी को देखने देंगे, चाहे वो बॉलीवुड जो भी कर ले। यस आयुष, आपको क्या लगता है? बोलिए। यस बोलिए। जो हो रहा है सही हो रहा है, बॉयकॉट होना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फिल्म आई थी धोनी, वो तो एकदम उसने पूरा प्रैक्टिस किया, जान लगा दिया, पूरा रिसर्च तक किया। ये फिल्म मेरे को लगता है कि जैसे लगता है एक विग लगा दिया, ऊपर से मेकअप लगा दिया और पब्लिक को दिखा दिया कि आप कपिल देव लग रहे हैं। यानी सारा फोकस जो है बाल पे है, फेस पे है, सेम दिखने पे है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आप रामानंद सागर के रामायण को और बी आर चोपड़ा के महाभारत को आज के रामायण महाभारत से आप कंपेयर कर सकते हैं? नहीं ना, नहीं कर सकते। वैसे ही आप सुशांत की फिल्म, धोनी की फिल्म को आप 83 की फिल्म से कभी मैच नहीं कर सकते। कहीं जमीन आसमान का फर्क है। वो ना 3 में दिखाई दे रहा है, ना 13 में दिखाई दे रहा है। क्या फर्क है? क्या फर्क है आपके मुताबिक आयुष? बोलिए। मेरे लिहाज से इसमें फर्क है कि हाँ, पूरा डेडिकेशन दिखा था सुशांत का, और इसमें डेडिकेशन नहीं दिखाया गया था, बस खाली इसकी बस फुटेज दिखाई गई कि सारा फुटेज मैंने खाना है, बाकी को छोड़ दो। यानी रणवीर सारी पूरी मूवी अपने पर, अपने स्टारडम पर रखना चाहते थे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द कैरेक्टर, करेक्ट? या अब आप देखिए, अभी जर्सी मूवी आ रही है, फिर कार्तिक आर्यन को भी क्रिकेटर बनना है, तापसी पन्नू मिताली राज का बायोपिक कर रही है, और आज मैंने सुना कि अनुष्का शर्मा झूलन गोस्वामी जो फास्ट बॉलर है, करेक्ट, बहुत सारी फिल्में बन रही है। लेकिन अब इसके बाद कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सी फ्लॉप, मुझे इस बात की आयुष बोलिए। आपने जिक्र किया कि उसमें सचिन तेंदुलकर को लिया गया था। जब ये मैच खेला गया था, ये वर्ल्ड कप, तो उस समय सचिन तेंदुलकर की एज 10 इयर्स थी। उसके ठीक फौरन 6 साल बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। That's right. तब ये कहां से ऐड किया गया? क्योंकि आप सारा मसाला डालिए ना, फिल्म को हिट कराने के लिए कुछ भी मत। रणवीर सिंह कपिल पाजी के रोल में ठीक बैठा, ना उसकी उनकी वाइफ के रोल में बैठा, कपिल पाजी की वाइफ के रोल में, दोनों ही फिट नहीं बैठे।
यानी आपको लगता है कैरेक्टर का सिलेक्शन भी गलत था? गलत। बाकी सब ठीक ठाक है। उसमें संदीप पाटिल के जो बेटे हैं, अपने पिता का रोल सही किए। चिराग बहुत सारे पाटिल। लोगों ने बात कही है कि कैरेक्टर सही नहीं बैठा। और पंकज त्रिपाठी का तो रोल ठीक ठाक था ही, वो फिट भी है। दोनों में फर्क एक और भी है ना आयुष, एक फर्क ये भी है कि जब आप 83 को देखते हैं, 83 एक टीम पर बनी हुई फिल्म है, एम एस धोनी एक इंडिविजुअल पे बनी हुई फिल्म है। इंडिविजुअल के कैरेक्टर में घुसकर उसके कैरेक्टर को समझना, उसको जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक टीम के को लेकर कोई फिल्म बना देना और उसको डिलीवर करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि टीम में अगर 11 लोग हैं और 5 का परफॉर्मेंस वीक भी है ना, तो फिल्म चल जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 अच्छे परफॉर्मर्स हैं। लेकिन जब वो इंडिविजुअल होता है, अगर सुशांत का परफॉर्मेंस खराब होता तो एम एस धोनी बहुत बुरी तरह पिट गई होती, लोग उस फिल्म को याद भी नहीं करते। सुशांत का परफॉर्मेंस होना, सही होना बहुत जरूरी था उस फिल्म के लिए, और सुशांत ने वो किया। शायद रणवीर सिंह को ये बात समझ में नहीं आई कि ये पूरी फिल्म उनके बलबूते चल रही है। वो अपने स्टारडम सिम्बा के दिमाग में रखकर कि वो इज अ बिग स्टार, वो दिमाग में रखे, जैसा आप भी बोल रहे हैं, वो दिमाग में रखकर फिल्म को करते रहे। इस बात को भूल गए कि कपिल देव 83 में अननोन पर्सन थे, उनको कोई नहीं जानता था। सडनली ये एक कैप्टन आया, उसने 175 रन बनाया जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिसका आज तक कोई भी फुटेज नहीं है, वीडियो फुटेज नहीं है। जो मैच इंडिया हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता, वो मैच इंडिया जीत गया और इंडिया वर्ल्ड कप में रहा और कपिल देव स्टार बन गए। कपिल देव को छोटे से बड़ा होने की जो कहानी है ना, वो रणवीर सिंह नहीं निभा पाए। दिस इज व्हाट आई स्ट्रगल जैसे धोनी का था कि वो सेंट्रल कोल फील्ड में भी खेला उन्होंने, कूच बिहार भी खेला, वहाँ पे उनका सामना युवराज सिंह से होता है। फिर उसके बाद उन्होंने रेलवे ज्वाइन किया, फिर वो इंडियन टीम में आए। वैसा नहीं था, क्योंकि कपिल पाजी थे मिडिल क्लास किसान परिवार के। वैसे उनके जो टीम थी उनकी सिर्फ गावस्कर को छोड़ दें तो बाकी सब लो मिडिल क्लास फैमिली से थे, क्योंकि गावस्कर के मामा जी भी क्रिकेटर थे, माधव मंत्री। या राइट, करेक्ट। आप काफी नॉलेज रखते हैं, वेरी गुड, आई लाइक दैट। अब इन्होंने एक ट्रेंड सेट कर रखा है कि साउथ से बुला लो, नॉर्थ से बुला लो, ताकि इनका कोलिजन हो, पब्लिक आए। लेकिन ये लोग भूल गए कि बॉयकॉट बॉलीवुड है। अभी देखिए कल पंजाब में जो घटना घटी, कोई एक कलाकार बता दीजिए जिसने ट्वीट किया हो? नहीं, किसी ने नहीं। 8 दिसंबर 2021 की घटना पे किसी ने ट्वीट किया हो? किसी ने नहीं। इन्होंने आर्मी पे फिल्म बनानी है, लेकिन आर्मी की शहादत पे कभी ट्वीट नहीं किया, ना उनके घर तक गए। राइट। 26/11 में जितने पुलिस वाले मरे, क्या उनके घर पे गए? तुकाराम मामले जिसने गोलियां खाई। एक्चुअली ये लोगों की फिक्र नहीं कर रहे, लोगों से दूर होते चले आ रहे हैं, इसलिए फिल्म पिट रही। यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट, यू आर मेकिंग अ वेरी वैलिड पॉइंट आयुष। आप सही बात बोल रहे हो कि आप लोगों से अगर आपका कनेक्ट दूर हो जाएगा ना, तो अमिताभ बच्चन को पब्लिक ने अमिताभ बच्चन बनाया, खिड़कियां तो पब्लिक तोड़ रही थी, अब जाके अमिताभ बच्चन बने। अगर पब्लिक नहीं जाती खिड़की पे तो फिर अमिताभ बच्चन कैसे बनते? आज अगर 83 फ्लॉप हुई है, वो इसलिए क्योंकि लोग खिड़की पे नहीं गए। दिस इज अ फैक्ट। लोग खिड़की पे नहीं गए, तो लोगों को लाइए ना, आप खर्च कर दीजिएगा एडवर्टीजमेंट में, मीडिया से लिखवा दीजिएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने पढ़ के सुना दिया सारा। उनकी रेटिंग मेरे को लगता है घर से लिख के आती है, जो भी है, व्हाटएवर इट इज, एनीथिंग। कुछ और बोलना है आपको आयुष? थैंक्स आयुष, थैंक्स अ लॉट। आप काफी नॉलेज रखते हो एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक्स ऑलवेज। थोड़ा सा कैमरे से दूर रहा कीजिए, आप बोलते बहुत बढ़िया हो। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग। यस मैनी, प्लीज गो अहेड। नसरीन आप अगर हैं तो आइए। नसरीन को मैं देख रहा हूं, लेकिन नसरीन स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं उनको ऑन एयर नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार किया था लेकिन वो ऑफ स्क्रीन हो गई थी। तो नसरीन अगर आप कनेक्टेड हैं तो प्लीज कम, आई विल बी मोर देन विलिंग टू टेक यू ऑन एयर। शी हैज कम फॉर द फर्स्ट टाइम बट शी जस्ट केम एंड डिस्कनेक्टेड। यस मैनी, प्लीज गो अहेड। 1 second. You also want to say something on the comparison, Manny? Sir, first of all, these movies, one is a autobiography and one is about winning. Yes. One is about an individual, the other is about a team sport. Yeah. So, I mean, it's basically director is the captain of the ship. Correct.
So, and then comes the team. The actor or the team, they have to work together. Ultimately, director decide करता है कि मूवी को किस एंगल में लेके जाना है, and actor का काम है कि वो डायरेक्टर के विजन को ट्रू कर सके, right? So it is according to the script and everything. So I don't know what 83 looks like, and I'm not even interested in knowing, because for me, important thing is Bollywood has to speak. So for me, as far as Sushant is concerned and what I've understood about his efforts of MS Dhoni is, like I said, that Sushant had said that on the first day of the shoot, he had prepared so well. He was not Sushant Singh Rajput anymore. He was MS Dhoni. एंड जो डायलॉग सुशांत ने बोला था कि मरने से पहले किसके बारे में वो जानना चाहेगा, इट वाज नॉट सुशांत. ही हैड सेड सुनील गावस्कर वाज इंटरेस्टेड, कि उनको एक सवाल पूछा गया था कि अगर आप मरने से पहले किसी क्रिकेटर के दिमाग के को जानना चाहेंगे वो कौन है, तो सुनील गावस्कर ने बोला था MS धोनी, नॉट सुशांत. But Sushant took his inspiration from MS Dhoni, and what he learned the most from him was living in the present. And Sushant said that I learned this the most from MS Dhoni. The reason why he's so calm when the team is under stress or they have to win the World Cup, because he only focuses on the ball that is coming to him, and he lives in the present and hits the shot accordingly, and that is why he doesn't take too much pressure when the going gets tough, and that is why he's able to give a performance. So Sushant said that I also now live in the present. I don't think about the future that much. तो जहां जिस मोमेंट में मैं रह रहा हूं, मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं. अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं आपको पूरी अटेंशन दे रहा हूं. यू आर माई फोकस एट द मोमेंट, बिकॉज दैट इज माई प्रेजेंट. एंड दैट इज हाउ सुशांत सिंह राजपूत लिव्ड हिज लाइफ एज वेल, which also again gives you proof about his state of mind. Now, another thing I want to tell you is that Sushant Singh Rajput not only studied physically how MS Dhoni, performed while batting or while playing cricket, he also did a lot of focus on understanding how MS Dhoni's brain works. So Sushant said that I had around 250 to 300 questions that he had, created, and he wanted answers from MS Dhoni. और उसके बारे में इनकी advertisement भी काफी चली थी कि how MS Dhoni is an introvert and he doesn't like to talk too much. But Sushant said I had to get to know what he would do if this situation had happened to him or that situation had happened to him, so that he can understand his mind in a better way. So sir, I don't know what the comparison is जब इन दोनों की story lines ही बहुत different है. MS Dhoni is a autobiography and 83 is the journey of a team winning the World Cup under various challenges. Correct. तो अब ये डायरेक्टर पे डिपेंड करता है. अगर उसने रणवीर सिंह के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, आपको याद होगा जब हम पहले भी बातें कर रहे थे तो मैं आपको बोल रही थी कि टीम को इतना फोकस नहीं कर रहे हैं जितना रणवीर सिंह के ऊपर इंटरव्यूज में बात कर रहे हैं. Correct. And then I had done a comparison with Chichore. Maybe that is their mistake, because this movie was not just about Kapil Dev. He may be the captain. It is not a mistake. There is only one mistake, that they have forgotten the fact that फिल्म देखने के लिए पब्लिक आती है. अगर पब्लिक नहीं आएगी तो फिल्म नहीं चलेगी. बॉटम लाइन है पब्लिक, और आप पब्लिक को इग्नोर करके फिल्म को समझेंगे हिट कराना है और फिल्म हिट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. OTT पे भी पब्लिक ही देखती है. तो आप छोड़िए थिएटर को. इस फिल्म के बारे में जिसको लेकर इतना हाइप किया जा रहा है, which is called 83, इसको लेकर one of the critic I read out has said that this movie actually deserves to be released on OTT. क्यों? क्योंकि इस तरह की फिल्में जो इवेंट बेस्ड हैं उसको थिएटर में जाके पब्लिक पैसा वेस्ट करना नहीं चाहेगी. आप उसको OTT पे दिखाइए. ये वो हीरोज हैं, ये वो डायरेक्टर हैं, ये वो प्रोड्यूसर हैं जिनको OTT पे जाना अपनी तौहीन लगता है, अपनी तौहीन समझते हैं. ये आज इनको क्रिटिक्स कह रहे हैं कि जाइए अपनी फिल्म को OTT पे दिखाइए, आपकी फिल्म थिएटर्स में देखने के लिए कोई तैयार नहीं होगा. और पब्लिक उस बात को इंडोर्स कर रही है, इनके फिल्म को देखने नहीं जा रही है, पुष्पा और स्पाइडरमैन को देखने जा रही है. यानी ये फिल्म अगर OTT पे आ जाएगी, अभी मैं मैसेज देख रहा हूं, दे आर सेइंग दैट वी आर वेटिंग फॉर द मूवी टू कम ऑन OTT. जब OTT पे आएगी फिर देख लेंगे हम. तो यानी फ्री में लोग देखेंगे, आप इसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं करेगा. दैट मीन्स
आपके अंडरस्टैंडिंग में कुछ लोचा है, आपने गलत समझ लिया है। पब्लिक को अगर आप वैल्यू नहीं दोगे, पब्लिक को जो चाहिए आप वो सर्व कीजिए। आप क्या देना चाहते हैं पब्लिक वही देखेगी, वो वक्त चला गया। पब्लिक को जो चाहिए वो सर्व कीजिए। ये फिल्म पब्लिक को वो नहीं देती है जो पब्लिक को चाहिए। पुष्पा दे रही है और स्पाइडरमैन दे रही है, वो ये कि वो हिंदी में नहीं है, वो बॉलीवुड की नहीं बनी हुई फिल्म है, इसलिए देख रहे हैं लोग। यस, गो अहेड मैनी। So for me, I think everybody really has to understand that, the reason why we are boycotting Bollywood and what is the real reason. For me, comparison है किसने क्या एक्टिंग करी है, नहीं करी है, कौन अच्छा एक्टिंग कर रहा है मूवी में, कौन नहीं कर रहा है, रणवीर सिंह ने क्या किया है, I don't care. For me, all those people who have created injustice for Sushant Singh Rajput in Bollywood, nature will take its own course. It's poetic justice. That's the bottom line. जिसको जो बोलना है आप बोलते जाओ। मैंने पहले भी बोला था कि केदारनाथ की मूवी अगर आप दोबारा ध्यान से देखें, उसमें सुशांत की काफी स्टोरी निकलती है बाहर। अब आपकी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। मैंने पहले भी बोला था कि जो प्रकृति है, जब उसको क्रोध आता है तो वो किसी को नहीं देखती है कौन है, या अमिताभ बच्चन है या कोई छोटा बॉलीवुड का एक्टर है। अगर उन्होंने गलत काम किए हैं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, उन्होंने गलत तरीके की तरफ अपने फायदे के लिए वो जुड़े हैं, वो सब खत्म होंगे। ये हो रहा है। मेरा ये देखने का तरीका है। केदारनाथ की मूवी देखिए, आप सब अच्छे से देखिए, अच्छे से डायलॉग सुनिए आप। इट्स नो लॉन्गर अबाउट कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की मूवी देखना मुश्किल होता है, पर सुशांत सिंह राजपूत की जो लेगेसी है उसको तो आप व्यूज दें, उसको तो आप देखें। वो क्या छोड़ के गया है आपके लिए, आपको देखना चाहिए। वो मूवी में सब पता है कि कैसे वो डिफरेंट लोग रिप्लेस हुए हैं उस मूवी में, जिन्होंने उसके साथ इनजस्टिस किया था, और एंड में नेचर ने ही उन लोगों को खत्म किया है। सो बॉलीवुड हैज टू अंडरस्टैंड दिस। It has, and all of us also Bollywood will have not to understand it. Bollywood will understand only when they are hit. Yes, financially. Financially. Yes. So this movie failing is a big hit on their financial pockets. So उन्होंने सोचा था इस फिल्म के बाद रिवाइवल होगा। आप लोगों ने इस फिल्म को पीट कर उनके प्लान्स पे, मंसूबों पे पानी फेर दिया है, उनके प्लान्स को फेल कर दिया है। अब सवाल यह है कि इसके बाद बॉलीवुड क्या हिम्मत करेगी कोई बड़ी फिल्म रिलीज करने की जल्दी। हाँ, 8 महीने 10 महीने 1 साल बाद तो कर ही लेगी कोई फिल्म आएगी, क्या होगा वो बाद में देखेंगे। फिलहाल कोई बड़ी बजट फिल्म तुरंत रिलीज हो जाएगी ऐसा नहीं लगता। वो कभी कोविड का बहाना देंगे, कभी कोई बहाना देंगे। फैक्ट है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बॉलीवुड पे हिल गया है, और ये लोग एडमिट करना नहीं चाहते। यस, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड। And sir, another thing, they are trying various things also ना। अभी जैसे अतरंगी रे आई है, वो एक साउथ इंडियन एक्टर लिया है, नॉर्थ इंडियन गर्ल लिया है, तो उन्होंने 3 लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया, उसको 4 लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, वो बायलिंगुअल कर रहे हैं। हाँ, ये यही तो पायल भी बोल रही थी। Yes, they are doing it. That is their trick. अभी वो किसकी मूवी आ रही है, वो देवीकोंडा की मूवी आ रही है। मैं रिस्क बताता हूँ। बाहुबली में कोई भी बॉलीवुड का कैरेक्टर नहीं था, मतलब एक्टर नहीं था, करेक्ट। वो फिल्म प्रोड्यूस जरूर की थी मिस्टर करण जौहर ने, एसोसिएट किया था। लार्जली इट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय हिम, बट ही हैड एसोसिएटेड। बट वो तब था जब सुशांत सिंह राजपूत वाज अलाइव, ओके। बट उस फिल्म में एक्टर के तौर पे कोई भी बॉलीवुड का नहीं था। अब अगली फिल्म जो राजमौली की बड़ी आ रही है वो है आरआरआर, है ना। अब आरआरआर में आलिया भट्ट भी है और अजय देवगन भी है। अच्छा। अब रिसेंटली मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है मिस्टर राजमौली का, व्हिच सेज that Alia Bhatt is not the main actress. Okay. She and Ajay Devgan have only a small role, small guest appearance. They are not the main actors of the film. क्यों कहा? Why is Rajamouli saying this? Rajamouli knows the people anger against Bollywood. Yes. जब 83 फ्लॉप हुई है उसके बाद राजमौली का ये स्टेटमेंट आया है कि these 2 actors have a guest appearance and they are not the main actors. क्यों? He doesn't want the anger that is there against the Bollywood actors to spill over RRR. RRR में बहुत कुछ स्टेक पे लगा है।
तो रिस्क भी है मैनी। आप Yes. ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स को डालोगे तो लोग आज पुष्पा तो देख रहे हैं, Yes. और आपको भी नहीं देखेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल। So the thing is, जैसे लिगर है, which is produced by Karan Johar, उसमें विजय देवीकोंडा है। They are planning to release it in 5, languages: Tamil, Telugu, Kannada, all these, because of Vijay Deverakonda is a popular actor in the South, and the heroine is Ananya Pandey. तो मतलब कि विजय देवरकोंडा तो अब ये साइन कर रहे हैं, तो करण जौहर की प्रोड्यूस्ड है, अनन्या पांडे है और विजय देवरकोंडा है, तो मतलब कि हम पिक्चर देखेंगे। इफ यू नोटिस, बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स आर लार्जली फोकसिंग ऑन साउथ इंडिया राइट नाउ, क्योंकि उनको समझ में आ गया पब्लिक ना, यार साउथ इंडिया पे नाराज नहीं है, उधर पैसा लगाओ। यस, दे वांट मनी, they think they are too intelligent. यस, You see, there is a difference that Mr. Karan Johar and others are not understanding. ये पब्लिक जो है ना, जो प्रोटेस्ट कर रही है, वो पब्लिक नहीं है जो 60 साल की एज की है। आप खुद बोल रहे हो ना कि 18 से 35 वाले जो हैं वो फिल्म नहीं देख रहे हैं, इनको सब मालूम है। आप इधर से जाओगे ना, ये उधर से ही ब्लॉक कर देंगे। आप तो डूबोगे, इस तरह दूसरों को भी ले डूबोगे। बिल्कुल। अब ये तो मतलब साउथ इंडियन वालों को देखना है सिनेमा को कि क्या वो एक खामियाजा भुगतना चाहते हैं। तो सर उनकी मर्जी है, वो तो सोचते हैं कि हमको साउथ इंडिया में तो हमारा जो प्रॉफिट हमने इन्वेस्टमेंट करा है वो तो मिल ही जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो टिकट प्राइस है, जो नॉर्थ इंडिया का सिनेमा हॉल है पीवीआर और जो साउथ इंडिया में पीवीआर सिनेमा हॉल है, उसमें टिकट में ही इतने पैसे का डिफरेंस है। We are spending only 200 rupees here, over there you are spending 500 600 rupees per person. इधर ही देख लो। There is no ticket available in 500. किसमें? Oh, in North India. How much is it? 800, 1000, 1200, 1500, 2000. So I'm not joking. I'm really telling you, in South India, it is just 200, 250. That is it. Yeah, I know that. I know that. See, understand, there's a difference. जब साउथ इंडियन फिल्म के एक्टर्स को आप देखेंगे और उसको बॉलीवुड के एक्टर्स से कंपैरिजन करेंगे, तो एक फंडामेंटल फर्क है। फंडामेंटल फर्क ये है कि साउथ इंडियन फिल्म के एक्टर्स आज भी ग्राउंडेड हैं। वो आपको किसी मैरिज में, किसी इवेंट में, किसी रोड पे, किसी रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे, डांस करते हैं। बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं ये सब सिर्फ पैसा ढूंढते हैं। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, और बड़े तो इतने हैं कि सारे कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। ड्रग का रेड होता है तो कोई ना कोई बॉलीवुड एक्टर पकड़ा जाता है। इनकम टैक्स रेड होता है तो बॉलीवुड एक्टर पकड़ा जाता है। कोई पोर्नोग्राफिक रैकेट आता है तो फिर किसी बॉलीवुड एक्टर का नाम आ जाता है। कोई सुशांत सिंह राजपूत केस आता है तो फिर बॉलीवुड एक्टर का नाम आ जाता है। तो इनके जो कारनामे हैं ना, बहुत बड़े बड़े, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं। ये नहीं कि साउथ इंडिया में नहीं होता ऐसा। तो बहुत छोटी है ना, ये लोग तो चीटी हैं। चीटियों की फिक्र थोड़ी करते हैं ये लोग। इनको तो क्या 2 मिनट में ठीक कर देंगे। अब पब्लिक बता रही है कि चीटी जो है ना वो हाथी पे बहुत भारी पड़ती है। नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पूछना है कि आप में क्या इतना टैलेंट है, हुनर है कि आप नॉर्थ इंडियन पब्लिक से इतने पैसे ले रहे हो, जब द सेम एक्सपीरियंस, सेम सिनेमा हॉल इज बीइंग देयर। वो पैसे पीवीआर ले रही है। नहीं सब डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह सबको मिलते हैं पैसे। क्या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह सबको पैसे मिलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर तो अपने पैसे ले लेता है और वो पीवीआर उसको दे देता है। जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देता है उसी हिसाब से वो टिकट डिसाइड करता है। नहीं तो आप ये भी तो, हाँ एग्जैक्टली। तो जब अक्षय कुमार जैसे लोग और सलमान खान जैसे लोग इतनी ह्यूज फीस लेते हैं 100 करोड़ की, देखिए 100 करोड़ में है क्या आप में कि मैं 100 ज्यादा बात नहीं करूंगा, because there is a show that I'm planned. I am just waiting for some thing to come. The moment it comes, I have a lot of material on it. I will come and talk about this in detail about the preference to have this kind of a massive payment going on for big stars. I will come and talk about this some other day. That is where the whole thing is. These big stars have to go down. अब उनको retirement कराना ही पड़ेगा, और I hope everybody is ready to do that. No, I will tell you. I will put a picture here, prompt a picture जो आपके सवाल का जवाब देती है। ये वो पिक्चर है। Let me put it full frame. अब इसमें आप गौर कीजिए, सलमान खान के साथ राधे में जो एक्ट्रेस हैं वो कौन है? दिशा पाटनी। दिशा पाटनी का एज क्या है? 22, 24। सलमान खान का एज क्या है? 56। Now this is what you expect a hero and a heroine का गैप? अतरंगी रे में हीरो कौन है?
Akshay Kumar. No, sir, he is not the main hero. All right, but he's a hero. Heroine Matlab कौन है? he is playing a role. Whatever, I don't buy that. I am just saying he is playing a role. Who is the girl? Sara Ali Khan. Yes. चलिए ठीक है, इस फिल्म को छोड़ दिए 1 मिनट के लिए, इस फिल्म को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए. अक्षय कुमार का एक एल्बम आया है अभी रिसेंटली, Okay. म्यूजिक एल्बम आया है जिसको हनी सिंह ने प्रोड्यूस किया है Okay. या किसी और ने बनाया है. उसमें कौन है एक्ट्रेस उनके साथ, जिसके साथ वो लव इंटरेस्ट उस गाने में प्रेजेंट कर रहे हैं? वो है कृति सेनन की की सिस्टर. बहन, छोटी बहन. हाँ. उसकी एज क्या है? 21 years old. So what are we talking about? Yes. Shahrukh Khan is playing, is acting with whom? With whom Shahrukh Khan is doing films? सलमान खान किसके साथ कर रहे हैं? आमिर खान किसके साथ कर रहे हैं? Hmm. अक्षय कुमार किसके साथ कर रहे हैं? सैफ अली खान किसके साथ कर रहे हैं? और अजय देवगन किसके साथ कर रहे हैं? सैफ अली खान सारा अली खान के कंटेम्पररीज के हीरो बन रहे हैं. तो किसका हीरो बन रहे हैं वो? जिसके भी बन रहे हैं, मतलब He is not doing according to me. I have done the show. I can revisit हाँ that. ठीक है, we'll talk about it when you do. We can revisit the show. ये सारे ही जो 5-6 बड़े एक्टर्स हैं, ये सब लोग अपने से आधे से कम उम्र की लड़कियों के साथ लीड रोल प्ले कर रहे हैं, डिफरेंट मूवीज. तो लेट्स नॉट थिंक दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज एलियन, बिकॉज ये सब के सब जो हैं ये भूलना ही नहीं चाहते कि इनकी एज बढ़ रही है. Yeah. ये लोग एज अप्रोप्रिएट रोल करना नहीं चाहते हैं. ये आज भी खुद को यंग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. राधे में आपको पोस्टर में सलमान खान आपको क्या 56 ईयर ओल्ड लग रहे हैं? नहीं, ही इज स्टिल लुकिंग लाइक मैंने प्यार किया वाला हीरो. नहीं सर, क्या बात कर रहे हो आप? वही, he wants to look like. हाँ, he wants to look like that, but he doesn't look far from it. He looks like. No, but आप आज के टाइम में सब कुछ बदल सकते हैं. पिक्चर क्वालिटी पूरी चेंज हो सकती है. हाँ, yes. टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग हो गया है कि रजनीकांत को भी 28 साल का बना दिया जाता है ना. Yes. Sir, and you know, Disha Patni की first movie was with whom? Disha Patni's first movie was with Sushant Singh Rajput. Yes, with Sushant Singh Rajput and MS MS Dhoni. Dhoni. That was her first movie. Yeah. तो देख लो कहाँ सुशांत सिंह राजपूत, कहाँ सलमान खान. I mean, there is no comparison only. कोई भी comparison है ही नहीं इनके बीच में, बिल्कुल भी. Correct. Anyway, So, anything else that you want to add? so this is only what I want to add, that Sushant, you know, the kind of actor he was, I would request everybody to go and watch his interviews, especially Bollywood Hangama interviews and other interviews he's done while he was shooting for promoting MS Dhoni. सबको जाके देखना चाहिए. You should understand, you know, slowly discover Sushant not only as an actor but also as a person. And I think this year we should do that, and then we will understand more about his psychology, how he used to think, what he used to think, and what he has said. I think it's very important to discover Sushant not only as an actor but as a person this year. Perfect. Last year हमने बहुत 2021 में हमने काफी discover किया, you know, as an actor and what all things was happening. I think it's time we discovered Sushant as a person this year. Perfect. Thanks. Thank you so much. So thanks Manny for talking about that. There's lots that we can talk about Bollywood. The fact remains कि Bollywood को Bollywood public ने बनाया है, actors को actors public ने बनाया है. राज कपूर फिल्मों को पब्लिक तक ले जाने के लिए कुछ भी करते थे. अमिताभ बच्चन पब्लिक तक पहुंचने के लिए कुछ भी करते थे. सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को जो कुछ भी है आज वो पब्लिक के कारण है. आप पब्लिक है तो आप हैं, पब्लिक नहीं तो आप नहीं. अगर ये फिल्म नहीं चल रही है तो इसलिए क्योंकि पब्लिक नहीं गई. आप पब्लिक पे फोकस कीजिए, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप मीडिया पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, शोशेबाजी जिसको बोलते हैं आमतौर पर लोग, उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो. आप बेसिक चीज पे नहीं जा रहे हो, वो है पब्लिक. और पब्लिक इस वक्त नाराज है. आप उसकी नाराजगी को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हो उसके बारे में सोचो. जिस दिन आप उसके बारे में सोचने लगोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि करेक्शन कहां से होगा. और तब तक स्टोरी कंटिन्यूज, द स्लाइड कंटिन्यूज, एंड द फैक्ट इज द बॉयकॉट कंटिन्यूज. Whether that boycott will end or not will depend on how you as an industry react to what the people say. अगर फिल्म हिट करानी है तो पब्लिक को तो थिएटर तक ले जाना पड़ेगा. वो कैसे ले जाएंगे आप सोचिए. On that note, I take leave. Thank you so much for connecting. It was a nice discussion on this topic because I wanted the people to come and speak what they feel.
the best part I thought was the comparison between MS Dhoni, Sushant Singh Rajput, and 83 and Ranveer Singh. That's the kind of comparison which clearly establishes कि दोनों फिल्मों में क्या डिफरेंस है, एक फिल्म सुपर हिट और दूसरी फिल्म सुपर फ्लॉप क्यों हुई. Please do watch the video. Please share the video because this video is required to be taken to others. If you like it, please also subscribe the YouTube channel. If you have not done that, then ask. If you have not done that, then please do it. And if you have done that, then ask others to also do that. Good night. Take care. Shabbat.